students, welcome to Sri Siddh Vidyapith School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your English chapter 1, Little Nino and My Secret Beard. So students, we will be reading the chapter in detail so you can follow your prescribed textbook for a better understanding. This story is written by It's an autobiographical extract from Abid Surti. He is a well-known author, playwright and cartoonist who lives in Mumbai. He is also an environmentalist and works passionately to conserve water. So students, are you aware of the extent of water shortage in the world? So let's find out from this chapter. So let's start the chapter. Read this autobiographical extract where Abid Surti, a well-known water warrior from Mumbai, plans to talk to his grandson about water conservation. So it's an autobiographical extract where the writer of this story, Abid Surti, he is a well-known water warrior and he plans to talk to his grandson about the water conservation. Nino 6 साल का एक छोटा सा बच्चा है. अगर आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट से जाएंगे तो वो एक मामूली सा छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ 6 साल का है, पर आप उसके दिमाग से जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है. हम अडल्ट्स की तरह, एक यंग अडल्ट की तरह उसकी ब्रेन चलती है. आई एम 83 and he calls me DJ. The first time I heard it, I kept wondering why he used this acronym of disc jockey. Author 83 इयर्स का है. वो कह रहे हैं कि वो नीनो मुझे डीजे बुलाता है. जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि ये मुझे डीजे क्यों बुलाता है. इट्स एन एक्रोनिम ऑफ डिस्क जॉकी. आई एम एन ऑथर, अ पेंटर, अ कार्टूनिस्ट टू, बट हैव नथिंग टू डू विद म्यूजिक. मैं एक ऑथर हूँ, पेंटर हूँ और एक कार्टूनिस्ट हूँ, पर मुझे म्यूजिक के साथ कोई लेना देना नहीं है. सो वन डे आई आस्क्ड हिम, व्हाई डू यू कॉल मी डीजे? तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम मुझे डीजे क्यों बुलाते हो नीनो? He chuckled because you are my grandpa, my दादाजी. और उसने हंस के कहा, क्योंकि आप मेरे दादाजी हैं, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में डीजे बुलाता हूँ. But why not use such a sweet हिंदी वर्ड? तुम ये इतना अच्छा हिंदी वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते दादाजी? It's so sweet. To make my grandpa the DJ of 21st century. Ask Nino about any of his favorite subjects and his replies will amaze you for sure. Ask him about the electronic device in the pilot's cabin and he will tell you about the airspeed indicator and the altimeter. अगर आप नीनो से उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे तो उसकी आंसर्स आपको एकदम अमेज कर देंगे. You will be surprised by listening to his replies. Ask him about the electronic device. अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पूछें जो पायलट्स कैबिन के अंदर होता है, वो आपको उस डिवाइस की पूरी जानकारी देगा. He will tell you about the airspeed indicator and the altimeter. से ये भी पता है कि उस केबिन के अंदर क्या क्या रहता है. His favorite subjects are not only airplanes but also elevators, vehicles, computers and Indian trains. During the previous winter vacation, when the family was traveling to Delhi, he insisted on going by the Rajdhani Express. जब पिछली बार विंटर वेकेशन के लिए हम फैमिली सब दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे तो नीनो ने राजधानी एक्सप्रेस से जाने की जिद की थी. When we got to the station, the train had already arrived at the platform. जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी. The motorman was chatting near the engine with the guard of the train. मोटरमैन इंजन के सामने खड़ा होकर गार्ड के साथ बात कर रहा था. नीनो wanted to peep inside the motorman's cabin. नीनो को मोटरमैन के कैबिन के अंदर क्या था देखना था. We kept our luggage under our seats and I took him there. तो हमने अपना लगेज सीट्स के नीचे रखा और मैं उसे ले कर गया. Watching Nino keenly peeping into the interior, the motorman was impressed and took Nino inside for a closer look. Nino की इंटरेस्ट देखकर जिस गहराई से वो
उस इंटीरियर को देख रहा था, मोटरमैन उससे इम्प्रेस होकर उसे अंदर लेके गया और उसे नज़दीक से दिखा. Not only that, he explained the workings of the controls. Then Nino asked him, "Is this Rajdhani engine a VAP 5 or a VAP 7?" वही नहीं, फिर मोटरमैन ने नीनो को सारी कंट्रोलिंग्स बताई. उसके बाद नीनो मोटरमैन से पूछा, ये राजधानी एक्सप्रेस की इंजन VAP 5 या VAP 7 है. The motorman was amazed. मोटरमैन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया. However, he was shocked that Nino quizzed him. वो शॉक में रह गया कि नीनो को इतनी जानकारी है, क्योंकि वो एक 6 साल का छोटा सा बच्चा था. To be honest, I too quacked at him in surprise. मैं भी एकदम शॉक रह गया था उसकी इतनी ये बातें सुनकर. What is the secret of Nino's curious mind? ऐसा क्या सीक्रेट है नीनो की इतनी क्यूरियस माइंड की? वो इतनी जागरूकता क्यों रखता है? From where does he collect so many facts and figures? उसे कहाँ से मिलती है इतनी सारी facts and figures? From books, of course. Of course, books से मिलती होगी. Encouraged by his parents, he has cultivated the habit of reading. उसके पेरेंट्स की वजह से उसे रीडिंग करने की बहुत ज़्यादा शौक है. Besides, Nino at his age is quite familiar with the internet. उसके बावजूद उसे गूगल की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. इंटरनेट से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है. Google is his favorite source for all the queries that arise in his little mind. Google is his favorite source of all the. Google उसकी सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट सोर्स है ये सब क्वेश्चन की आंसर्स पाने के लिए. गूगल ही एक ऐसा चीज़ है, जब भी उसे कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में आती है तो वो फटाक से गूगल ऑन करके उसकी सोल्यूशन निकाल लेता है. When we fail to answer him, he finds the answer via the search engine. But his real secret is inquiry. जब हम उसे आंसर देने में फेल हो जाते हैं तो वो आंसर खुद ही गूगल से ढूंढ लेता है. पर उसकी रियल सीक्रेट है इंक्वायरी. वो बहुत ज़्यादा छानबीन करता है. He goes into deep to search about that fact. He will never accept any answers unless he is fully satisfied. वो आंसर्स तब तक एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होती, जब तक उसे ये समझ नहीं आता कि हाँ यही उसकी करेक्ट आंसर हो सकती है, यही उसकी करेक्ट वजह हो सकती है फैक्ट की. What interested me was this: how to motivate little Nino to save water. It hadn't rained much lately. मुझे ये इंटरेस्ट आया कि मैं इस लिटिल नीनो को कैसे समझाऊं कि वाटर की बचत कैसे करनी है. हाउ टू सेव वाटर. और इस बार तो बारिश भी बहुत लेट आई है. और वाटर क्राइसिस नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली लूम्ड लार्ज. वाटर क्राइसिस इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली ये एक प्रॉब्लम हो गया है. ये बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम हो चुका है. बर्ड्स सर्चिंग फॉर वाटर वेर ड्रॉपिंग डेड. बर्ड्स को पानी ना मिलने की वजह से मर रहे हैं. Cows and other animals were waiting to die in barren fields. Cows और other animals को पानी ना मिलने के कारण fields में मर जा रहे हैं. Villagers had begun migrating towards big cities for food and water. Villagers भी village छोड़कर अपना जगह छोड़कर cities में move कर रहे हैं पानी और खाना के लिए. I felt that once Nino was convinced, he could inspire his school friends. मैंने सोचा अगर नीनो को मैं कन्विंस कर सकता हूँ वाटर सेव करने के लिए तो वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को ज़रूर इंस्पायर करेगा इस बात के लिए. आई एम अवेयर दैट चिल्ड्रन नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज बिकॉज दे आर द फ्यूचर. मुझे ये लगता है कि ये मैसेज बच्चों को ज़रूर आगे ले जाना चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स दे आर द फ्यूचर. आई एम ऑल्सो aware that the moment I open my mouth, I should be ready for the innocent and unpredictable questions that arise in the mind of today's children. और मुझे पता है कि मैं अगर मुंह खोलूँगा नीनो के सामने तो मुझे उसकी innocent और unpredictable questions के लिए ready रहना पड़ेगा. मेरी माइंड को fully prepare करना होगा उसकी अटपटी questions के लिए. I would have to be fully prepared.
मुझे अपने दिमाग को पूरी तरह उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा that what I am going to reply to him if he asks me any question. I decided to plan the probable questions that Nino would ask and prepare my answers. मैंने एक प्लान बनाया जिससे नीनो मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं अपना आंसर्स प्रिपेयर करूँगा. I felt butterflies in my stomach at the super mature age. I felt like a student who before going for his final examinations. मेरे पेट में तो तितलियाँ उड़ने लग गई और इस उम्र में मुझे एक स्टूडेंट जैसा फील हो रहा था जो अपने फाइनल एग्जामिनेशंस देने जा रहा हो. Tries to work out possible questions. और वो अपने एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई करता है. आई वॉज फीलिंग लाइक दैट. नाउ हाउ टू बिगिन. सपोज आई टेक हिम टू रिलैक्स. नाउ हाउ टू बिगिन. सपोज आई टेक हिम टू अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट लाइक द नियरबाई पार्क एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन ड्रामेटिकली. तो मैं अब कैसे कन्वर्सेशन शुरू करूँ उसके साथ. अगर मैं उसे नियर बाय पार्क में ले गया तो कन्वर्सेशन ड्रामेटिकली मैं शुरू कर सकता हूँ. नीनो, डू यू नो दिस ईयर अ सिटी इन अफ्रीका कॉल्ड केप टाउन हैज़ वाटर लेफ्ट फॉर ओनली 3 months. नीनो, क्या तुम जानते हो अफ्रीका में एक सिटी है केप टाउन जहाँ बस पानी 3 महीने के लिए बची हुई है. ही विल सर्टेनली शूट बैक. सो और वो ये मानेंगे नहीं, मुझे क्वेश्चंस के साथ फिर बैकफायर करेगा. सो आई ट्राई टू foresee how this conversation would proceed. तो ये सब ऑथर अपने आप सोच रहा है कि मैं नीनो के साथ कन्वर्सेशन कैसे ट्राई करूँ. जस्ट इमेजिन नीनो फॉर फ्यू seconds. If we find out there will be no water in our lakes in 3 months, what will happen to the millions of Mumbaikars? Just imagine Nino for few seconds. He was imagining Nino for few seconds और ऐसे वो जैसे नीनो से क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या होगा अगर हमारे लेक में पानी ख़त्म हो जाएगा या फिर 3 महीने के लिए बची रहेगी तो हम मिलियन मुंबईकर्स का क्या होगा. मिलियन मुंबईकर्स का ही क्यों, पूरी दुनिया का क्या होगा. So students, this is the half part of this chapter. Remaining I will continue in the next video. If you have any queries related to this, you can ask me. I am going to clear it out in the next video. Thank you.